I'm in Uttarakhand. My name is Abhinav Vedanti, and I'm here to make a small video about Uttarakhand. And right now I'm in Jada Pani. The specialty of this place is the water which comes from the hills. Uh, this is the place from where the water comes. These are the trees and the herbs. The trees just purify the water, and the water recedes through the roots, and it comes through this opening right here that you can see. As you can see, people stop here and they fill their water bottles. Hi. Yeah, they fill their water bottles because the water here is extremely pure. It's cold. People wash their faces, and this is better than mineral water that you get in bottles, and it's cheap, it's free, and the lap of nature. Here you can see the Himalayas. There they are, the Himalayas, and these are the beautiful trees through which this pure water gets purified, and these are the roots of the trees inside the earth that help in purifying this water. Extremely pure water, good for health. Hi friends, we are in Kharmande right now. It's a small town in Uttarakhand, and right now I'm heading towards a village which the name of that village is Khadki. And yeah, as you can see, it's located right around 3 kilometers down there, and it's a nice village. And the reason why I'm going there is to give you a glimpse of the worship, a worship which is in Pahadi. It's known by the name of North. So there's going to be a puja over there. That's ritualistic puja which the whole village celebrates, and I'm going to give you a glimpse of that, and let's see how it turns out. Look at the whole village celebrating this ritualistic puja called North.
गलती माफ कर जाओ भगवान नारायण गलती रे माफ कर मन में हम मना ना ही नहीं लगाया है मन में कुछ न कुछ गलती है नहीं मन साफ परमेश्वर भगवान परमेश्वर सबने मन साफ छुआ देखने सकार सेम दिन अवतार है कि मैं आ भाई सब खाई बैठा है ना तो घर में दयाली दयाब खदमा खदमत सब दयाब खदमा सुदाब खत्म गुरपूज सुदाब खत्म अरे भेद दाब खत्म बदनाम व्यक्ति तो सुनाब दाब खत्म राजा दाब खत्म नानिया आत्मा बबूत जाते ना तुम धन कदाली पैर लगे
ये क्या है यार? कौन सा जूस? घर से आते सभी निर्माणी संदैव तुम्हारे गुरु कुणान तुमन से दैव हदम नाथ दक्षिण आप दैव हदम लाल गुरु मंदिर को बैठा खत्म 5 साल की परिक्रमा में छका चली लोगों ने आशीष क्या
Hi guys, I thought of giving you a live feedback of the puja that's conducted over here, and I'm gonna ask a few questions to the elderly people out there who will tell you about this ritualistic puja. So let's check it out. ये हुआ जिस टाइम आपको अवतार आता है, जिस टाइम आप करते हैं, कैसा उस टाइम चले कैसा महसूस होता है? उस समय आत्मा पूरी जो है हिल जाती है, पूरा आत्मा हिल जाती है। उसमें मतलब कुछ नहीं दिखाई देता है कि मौजे मतलब क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ करके कुछ नहीं आता है। वो भगवान मतलब हिला देता है, पूरी आत्मा को हिला देता है। तो जो मौजे सच होता है वो बागबानी निकल जाती है, इसीलिए हम उसको विश्वास मानते हैं। और ये कौन कौन से देवता आपको लगते हैं जो आते हैं शरीर में लोगों के? जैसे हमारे पहाड़ों में गंगनाथ देवता है, और डान में रहता है टनागोरिया रहता है, और धुरु में मतलब शहरों में हरे देवता भगवती रहती है। ऐसे देवते रहते हैं जो बिल्कुल छाया करते हैं, और वही आत्मा को कमा देती है और वही बागबानी देती है। अब ऐसा भी सुनने में आया है कि देवता आपको उपचार बताते हैं परेशानियों के, और इस बारे में आपका क्या कहना है? उसमें अब हमको ऐसा पता ही नहीं चलता कि किस में हम धोनी में चले जाते हैं, किसी में मतलब वैसी बैठ जब काम जाते हैं, आत्मा ही बोल जाती है। मतलब अब फिर बाद में हमको खिंचान जैसी पड़ती है, तो वो भगवान है, वो देवता है, बदन में आ जाता है, खिल जाते हैं ऐसे। तो हिलने में बड़ा फिर उसके बाद जो बागवानी है वो निकल जाती है, दुखी का दुख भर जाता है, और जो अच्छा दुख है जिसको जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए आदमी को मानते हैं। Now I'm gonna ask the Dangris. Dangris are the people who play the music, play the drums to incite the gods out of people, and let's see what they speak about this puja. कोई आपका ऐसा अनुभव हुआ हो जो बिल्कुल विशेष हो, बिल्कुल अलग हटके, जिसमें जिसने आपकी रूह कपा दी? जी। तो इसका कारण है सर, देवताओं का ऐसा होता है। आपका कोई अनुभव, कोई ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ, कुछ अलग बजाते मतलब जिसमें हम देवताओं की कहानी लगाते हैं जी, या उनका आसन लगता है जी, तो आसन लगने में ही मतलब हमको ये हमारा दिल मतलब आत्मा ये कह देती है जी, कि इस देवता का मतलब डांगर जो है ये आदमी। जी, तो उसके नियम, उसके आचरण, उसके व्यवहार जी, और उस पर जो शक्ति आती है, जी, भगवान की जो शक्ति होती है, हाँ जी, वो अलग अलग रूपों में वहाँ पर ढल जाता है। जी, तब हमको हमारा दिल ये कहता है कि ये आदमी जो है, ये डांगर जो है इस रूप का है, ये डांगर जो है इस रूप का है, ये डांगर जो है इस रूप का है। जी, उसी रूप से हम उन डांगर के जो उन देवताओं की जो है कहानियाँ भी वहाँ पर करते हैं। जी, जी, और जिसमें हम प्रकट करते हैं कहानियों को, तो पहले हमारा दिल मतलब जिसमें कहता है कि इस कहानी को हम यहाँ पर प्रस्तुत करें। तो प्रस्तुत करने से पहले हमारे शरीर में मतलब हमारी आत्मा ये बोलती है कि पहले मतलब आपको एक पूर्वाभास हो जाता है, विश्वास हो जाता है, विश्वास हो जाता है जी, कि पक्का मतलब ये चीज़ जो है इस मतलब इस रूप में आएगी, देवता आएगा। तो पहले अपने शरीर में हम उस चीज़ का ख्याल रखते हैं, अच्छा, ठीक, 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 तब उसके बाद उसका कार्य हम शुरुआत करते हैं। जी, जी। यही कारण। कोई अनोखा आपका अनुभव हुआ हो, बजाते बजाते कभी कुछ कोई ऐसी घटना हुई हो? अनोखा ऐसा अनुभव हो जाता है हमको, जैसे हम बजा रहे हैं जी, जी, तो बजाते बजाते भगवान की आकर्षित ऐसी हो जाती है कि हमारे ऊपर एक ऐसा प्रकोप ईश्वर ऐसा डाल देता है जहाँ पर हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हम बजा रहे हैं या ना बजा रहे हैं। अच्छा, उस समय हमको भी देवता आता है, जी, जी, जी। जैसे अभी वो अपने आया आप ही बजते जाता है जो वो आप- बजते जाता है, ठीक, वो ठीक, ठीक, हमको पता नहीं चलता है उस जी, समय। जी, जी, हम उस समय जैसे मतलब अंधा नहीं होता हाँ जी, है, हाँ जी, वही अंधे में रहते हैं, जी, जी, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है करके हमको पता नहीं चलता। जब हमको वहाँ पर 2 मिनट हमारे ऊपर जो वो देवता छोड़ देगा, जी, जब वहाँ पर हमको होश आ जाएगी, जी, जी, तब पता चलता है कि मेरे गले से क्या हो गया। तब तक आपको कुछ नहीं अनुभव कोई होगा। कोई पता आप नहीं एकदम भगवान की
भगवान के रूप में वहाँ पर हम स्थित थे। ठीक ठीक ठीक। तो वही मतलब देवताओं का मतलब आकर्षित हमारे पर, जी जी। तो यही कारण है। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। जैसे आपको देवता आता है, आप करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या लगता है इस पूजा के बारे में, क्या कहना चाहिए? स्वयं देवता हमारा बहुत सफल देवता है, हम इस पर बहुत विश्वास करते हैं और हमारी सबकी श्रद्धा भावना इज्जत के पूर्वक शांति पूर्वक हम इस कार्य को करते हैं और हमारा ये कार्य सफल भी रहता है। जैसे आपको देवता आता है, जिस टाइम आप अवतरते हैं, अवतरित होते हैं, हाँ, उस टाइम आपको कैसा महसूस होता है? उस टाइम ऐसा महसूस होता है एक चक्कर तो कुछ पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। जी जी। जैसे आपको भी अवतार आता है। ये हमारा कुल इष्ट देव है, स्वयं देवता। और इसकी जो हमारे यहाँ जो है यज्ञ होता है 84 उसको कहते हैं। जी जी। और 84 में जो है हमारे देव डांगर होते हैं। जो देव डांगर होते हैं उनमें जो है देवता का वास होता है, वो अवतरित होते हैं। तो अवतरित जिस समय होते हैं उस समय वो कंपन उनमें होती है और कंपन इतनी अधिक हो जाती है कि जो बाजे गाजे लगते हैं वो जो है उससे वो जो गुरु की धुनी होती है उस धुनी में उसकी परिक्रमा वो करते हैं और जो उनका गुरु जिसको हम दास कहते हैं वो उनको खिलाता है। और जो जनता होती है, जो भक्त लोग उसके होते हैं, वो उन्हें जो है देखते हैं कि उनकी उन पे आस्था होती है, अटूट आस्था होती है कि ये हमें जो है कुछ फल देंगे जो भक्ति हम कर रहे हैं। तो वो फल आज तक का इतिहास है, जब से जो है ये 84 शुरू हुई है तो भक्तों का जो है कल्याण ही हुआ है। और जो हमारा टमटा परिवार है वो जो है आज उन्हीं की बदौलत संपन्न है और सभी जो है सुखी हैं। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि क्या ये पूजा और जैसे इस युग में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो ये पूजा लोगों को आडंबर लगता है, झूठ लगता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोग अतरते हैं, अवतरित होते हैं, उनमें देवता आता है, आप कितना सत्य मानते हैं और क्या आपके विचार हैं? ये वैज्ञानिक भी इस पर खोज कर रहे हैं जी कि वास्तव में ये चीज़ है क्या। तो ये हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं और हम उस परंपरा को निभाने के लिए ये भूमि जो है देवभूमि कहलाती है, उत्तराखंड की भूमि। तो उसी की मान्यता को हम लेकर के अपनी आस्था को जो है आगे बढ़ाते हैं। आपको ये बिल्कुल सत्य लगता है, कोई आडंबर इसमें नहीं होता? जो लोग यहाँ अवतरित होते हैं बिल्कुल सत्य है, वो सत्य ही है, हम तो सत्य ही मानते हैं उसकी। जी। ठीक। और क्या आपको लगता है कि जैसे देवता कुछ उपचार बताते हैं और विभूति लगाते हैं, इससे लोगों का भला होता है? बिल्कुल, उससे जो है ये बात सत्य है। कई ऐसे वो केसेज आ गए हैं जी जी कि जब देव डांगर उन पे विभूति लगाते हैं जी वो हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। जी जी। लेकिन जो है देव डांगर जब उन पे जो है विभूति लगाता है तो वो जो है ठीक हो जाता है। ये हमने अपने उससे जो है देख रखा है। जी जी बल्कि इसमें जो है इतनी शक्ति होती है जी कि जो निसंतान होते हैं, जो ये हमारे स्वयं देवता हैं, कुल देवता हैं, जी जी तो ये दया के देवता हैं, दयावान देव हैं। जी तो ये अंधों को आंख दे सकते हैं जी। कभी और कोई जो ऐसा है निर्धन को धन दे सकते हैं कभी कोई और जो है बीमारी- निरपुत्र को जो है पुत्र दे सकते हैं। सन 84 की बात मैं आपको बताऊं जी कि सन 84 में हमारे यहाँ जब 84 लगी थी तो हमारे यहाँ हमारे सबसे बड़े भाई साहब जो हैं श्री दीवान राम टमटा जी, जी उनकी शादी किए हुए कम से कम 15-16 साल हो गई थी। जी तो उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। तो एक देव डांगर जो है तुलसी प्रसाद जी थे, वो ये मेरे सामने की बात है, सारे हमारे गांव के उसमें गवाह हैं। जी जी तो उनको जो है फल मिला था जी जी श्री दीवान नाम जी को। जी। तो और कोई उसको एक्सपीरियंस जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ठीक 10 महीने बाद उनका पुत्र हुआ था
ठीक। उसका नाम सोनू है। आज वो जो है एलटी में जो है सहायक अध्यापक के रूप में जो है कार्यरत है और वर्तमान समय में इसी देवभूमि में जो है इसी देव जो हमारी धुनी जली हुई है वो यहीं पे मौजूद है। ये सारे हमारे जो है भाई लोग और ये गांव वाले उसके जो है गवाह। जी। और इस पूजा के दौरान तो एक पुजारी को क्या क्या करना पड़ता है और कैसा रहा आपका अनुभव? सबसे पहले यहाँ पे पुजारी को नहा धो के साफ सफाई से जो मंदिर है मंदिर की साफ सफाई वहाँ पर दिए कितने बजे आप स्नान कर रहे हैं, कितनी बार करते हैं? 2 बार स्नान कर रहे हैं और 1 बार खाना खाते हैं। 1 बार सुबह स्नान करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर दोबारा स्नान करते हैं। शाम के टाइम पे 1 बार सुबह पूजा करते हैं और उसके बाद शाम को फिर दोबारा उसका भोग लगता है। शाम को फिर दोबारा पूजा होती है और उसके बाद फिर जागरण होता है रात में, ठीक है ना। वो फिर जो धुनी होती है वहाँ पर उसका जागरण होता है। रोक लो 5 मिनट के लिए, चलो। Hello friends, this is Abhinav again, and after 4 days of ritual puja called North, this is the 5th day today, and today is the day of sacrifices. Around each this village consists of around 17 to 18 families, which will be giving 1 or 2 sheep or goats as sacrifice. So in totality, we will see around 30 to 40 goats being sacrificed today. This might seem a little awkward and a little, kind of insane to those who are living in cities, but this is the trend which has been going on for centuries now. This is ritualistic puja and it involves sacrifice. Without sacrifice, the gods cannot be pleased. इधर से कर ले